أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على قوم الظالمين. جناب مودودی صاحب نے خلافت اور ملوکیت کتاب لکھی، اور کتاب وہ آیت جو بہت مشہور ہے، وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. یہ آیت میں کے ذیل میں انہوں نے اولی الامر کیسا ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے، جری ہونا چاہیے، یہ سب صفات قرآنی آیتوں سے بتایا انہوں نے کہ ایسا ہونا چاہیے ایسا. اور اللہ تعالیٰ نے جب اولی الامر بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، طالوت کو جو ہے تو اطاعت کا، طالوت کی اطاعت کے لیے کہا، یہ سب لوگوں کا جب ذکر کر رہے تو وہ ذکر کرنے میں یہ بات انہوں نے بتلائی کہ ان سب کو کسی عوام نے نہیں مقرر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام عوام نے بنایا، اور طالوت کو جو ہے تو بنایا، نہ کسی بھی جو ہے تو جتنا بھی انہوں نے صفات بتائی وہ صفات کا حامل جو نبی تھا یا رسول تھا یا جو بھی مقرر کیا گیا تھا وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا. اور یہ کام ایسا ہے کہ جب اللہ مقرر کرے گا تو وہ صفات اللہ زیادہ جانتا ہے کہ عوام جانتا ہے. جب عوام اگر کسی کو ان صفات کا حامل ماننے کے لیے ان کے پاس کوئی اگر ٹیسٹ ہی نہیں، اور جبکہ وہ خود اس کردار کے نہیں ہے، انسان جب جھوٹا ہوگا تو کبھی بھی کہاں جس سچے کو پسند کرے گا، فاسق کہاں جو ہے تو متقی کو پسند کرے گا. یہ سب جو ہے تو اور انسانوں کی اکثریت جو ہے تو فاسق رہتی ہے، ناشکری رہتی ہے. اللہ نے جو تو 100 سے زیادہ آیتوں میں اکثریت کی ذکر کر کے کہا کہ اکثریت ایسی رہتی ہے، اکثریت ناشکری رہتی ہے. اکثریت ان لوگوں سے جو لا علم رہتے، ناشکری رہتے، بے عقل رہتے، تدبر نہیں کرنے آتے، وہ ایک ایسا مدبر چن سکتے ہیں، ایسا اپنے پر حاکم چن سکتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ یہی جو ہے تو چیز کے لیے ہم نے یہ بتایا کہ جو ہے سورہ مائدہ میں کہا ہے کہ حاکم تمہارے کون ہیں؟ اللہ حاکم، رسول ہے، اور وہ مومن جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ سورہ مائدہ کی 55 ہے. اس میں اس وقت یہ اشارہ ہوا کہ بھئی دیکھو، جب حضرت علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی ایک فقیر کو دی، وہ فقیر آ کے پورا مشہور واقعہ ہے، ابوذر غفاری اس کے جو ہے راوی ہیں، کہ جب وہ فقیر کہا کہ بھئی میں اللہ کے گھر سے مانگ رہا ہوں، تو آپ نے جو ہے اپنی انگوٹھی ہاتھ کی انگوٹھی گرا دی، وہ لے کر چلا گیا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے سرپرست کون ہے؟ اللہ، رسول اور ایسے مومنین. اب یہ مومنین کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان صفات کے جو ہے تو نہ صرف مولا کائنات، اس کے بعد جو 12 امام آئے وہ سب جو ہے تو اب جب 12 امام میں سے آپ پہلے ہی امام کیوں نہیں سمجھ سکے تو 12 کو تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. تو یہاں پر یہی ہوا کہ ولایت کو، سرپرستی کو اللہ کے بجائے انسانوں کے اور وہ عوام کے جو کل ہی مسلمان ہیں، ابھی ان کے جو تو عقل و شعور اتنے بڑے تھے کہ وہ ایک متقی کو، ایک مجاہد کو، ایک جو ہے تو سچے کو، ایک ایسے انسان کو جو تو وہ اب اس میں یہ یہاں پر بہت تیزی سے وہ گزر گئے. حالانکہ ان کو یہ سمجھانا چاہیے تھا مودودی صاحب کو کہ بھائی کیسا عوام نے چنا، کیسا عوام کیا ووٹنگ ہوگی، کتنے مسلمان ہیں، کہاں سے نمائندے آئیں گے، کہاں سے چنیں گے. یہاں تو ایسا ہوا ہی نہیں، کوئی بھی بیٹھ گیا، اس کے بعد جو بیعت کا سلسلہ شروع ہوا.
पहले खलीफा जो बने वो सखीफा के चंद लोगों ने बनाया, फिर बैत ले ली गई। हाँ, दूसरे खलीफा जो तो बाई नॉमिनेशन है, उस वक्त तो कहीं जमहूरियत नहीं है। उस वक्त कैसे एक शख्स के ऊपर जो पूरा एतमाद कर लिया है, एक शख्स ने पूरा डिसाइड कर लिया इनका तकवे का, उनकी बहादुरी का, इनका यानी अल्लाह जो डिसाइड करना है तो अल्लाह के पावर्स इस बंदे में दे दिया गया। हाँ, और वो जो है तो पहले खलीफा ने दूसरे खलीफा को नॉमिनेट कर, ये नॉमिनेशन हुआ। फिर उसके बाद दूसरे ने क्या करे, दूसरे ने भी आवाम से नुमाइंदगी में उन्होंने नॉमिनेट करते हुए एक बॉडी बनाई। उस बॉडी में से जो है तो ऐसे कर ली कि एक ही शख्स के तरफ ज्यादा आ जाए कोई, और वो शख्स बन गया। ऐसे 6 लोग उन्होंने चुने, कोई आवाम ने नहीं चुने थे। कहीं ये नहीं बताया हुआ है कि वो आवाम के नुमाइंदे थे 6, कोई भी नहीं। वो सब जो है तो दूसरे खलीफा ने चुने और वो बने। यानी ये हो गया 3 खिलाफतें ये हुई। हजरत अली को भी जो हुक्मरानी या खिलाफत मुसलमानों ने दी वो जमहूरी तरीके से दी, मगर उन्होंने उनको वली या सरपरस्त नहीं माना, बल्कि वो यही अवामी जमहूरी, हमने आपको बिठाया अब आप हमारी सुनो। हालांकि ऐसे तरीके से अगर उनको वली या सरपरस्त मानता तो वो पहला भी बनते, तो वो अल्लाह के बनाए हुए नहीं थे। अल्लाह के बनाए हुए उस दिन से थे ईद गदीर, यानी 18 ज़िलहिज 60 हिजरी से वो हुजूर के वफात के बाद से वो जो है बन गए। और बनने के बाद उनकी सरपरस्ती, हाँ, हुकूमत पे लोगों ने कब्जा किया, हुकूमत हासिल कर ली। हुकूमत मैं पहले भी 1-2 वक्त बता चुका हूँ कि वो एक डिपार्टमेंट है विलायत का। अब इन्होंने मुल्कियत बता रहे कि भाई मुल्कियत कैसी हुई, क्यों हुई? हाँ, क्योंकि वो जो बता रहे हैं आप सारे आइटम के, उसके अंदर वो सारी आयतें इन्होंने बता दी कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और जब वैसा होना चाहिए एक उलेमा, तो वो डिसाइड कौन करे? अवाम पर्ची डाल के, अवाम एक, जबकि अवाम में अक्सरियत जो है तो अक्ल नहीं रखती, फिक्र नहीं कर सकती, तदब्बुर नहीं कर सकती। जो जिनके पास अक्सरियत का तदब्बुर नहीं है, जिनके पास अक्ल कम है, जिनके पास नाशकुरी ज्यादा है, वो एक शुक्रगुजार, एक अक्लमंद, एक मुदब्बिर कैसे चले? ये तो सिर्फ काम अल्लाह ही कर सकता है। इसलिए अल्लाह की ताब, रसूल की ताब, और वो मोमिनीन जो तुम्हें, यानी वो बिल्कुल ही उनका दर्जा यानी वही हो जो कि वो जब सरपरस्त होंगे तो वैसे ही करेंगे जो इस्लाम ने शरई तौर से सिखाया। उसमें कहीं भी उनके पास जो है झोल नहीं आ सकता, क्योंकि वो शरीयत को अल्लाह की तरफ से, रसूल की तरफ से, अल्लाह की तरफ से रसूल और रसूल की तरफ से उन तक आती है। इसलिए उसमें किसी किस्म का झोल नहीं पाएंगे। जो आवाम के जरिए आएगा तो वो आम की है तो मफादात की तरफ नजर रखिएगा, और आम के मफादात में झोल आने के, और वही हुआ मुल्कियत पहले ही दिन से शुरू हुई थी, जिसको ये बताना चाह रहे कि दूसरी खिलाफत के बाद हजरत उस्मान से शुरू हुई। हजरत उस्मान से नहीं शुरू हुई, हजरत उस्मान का आना भी मुल्कियत का ही नतीजा था। हाँ, हजरत अबू बकर का बैठना भी खिलाफत पे मुल्कियत का नतीजा था। हजरत उमर का बैठना भी मुल्कियत का नतीजा। ये लोग हुक्मरान बने, ये लोग वली नहीं बने। इसलिए जब भी मुश्किल आती तो हकीकी वली को बुलाया जाता, वो मसाइल को हल करते थे, क्योंकि उनके पास इल्म लदुनी था, उनको अल्लाह तरफ से इल्म दिया गया था, उनमें बहादुरी थी, वो जरी थे, और वो कभी भी जो है अपने नफ्स को शामिल नहीं करते थे। वरना उनको अपनी काबिलियत की वजह से लोगों में तबलीग करके, प्रोपगंडा करके और अपनी फौज जमा करके अपने हाथ लड़ने के लिए लड़ते, और उनको इससे वास्ता नहीं करते। और आवाम जब आपके पास 3 दिन तक आई मौला कायनात के वास्ते, जब जाके आप जो है उस खिलाफत को तस्लीम किए कि मैं अब एक्सेप्ट करता हूँ, मगर मेरे जैसा मगर जब वो हकीकी विलायत का अमल बजावरी करना शुरू किए, तो वही लोग जो आपको खलीफा बनाए के वास्ते आगे थे, वही जो है तो बगावत करे। हाँ, वही जो है तो बैत तोड़ दिए और जंग जमल जैसी जंग करे,
एक हुक्म ही नहीं माना। इस तरीके से जो है अवाम के जरिए थी बोल के ये हुआ, और ये लोगों ने अवाम ये समझे कि हमने अली को खलीफा बनाया, वरना वो उस गदीरी विलायत को समझते तो कभी हजरत अली से बगावत नहीं करते। तो गदीरी विलायत ही असल विलायत है जो 18 ज़िलहिज को हुजूर के जरिए, अल्लाह के जरिए हुजूर को हुक्म हुआ, हुजूर के जरिए इस्लाम के निफाज के लिए पेश की गई। और गदीरी विलायत ही हमेशा जो है तो इस्लाम की हिफाजत करेगी, वरना अवामी अगर सरपरस्ती और हुक्मरान और खलीफा बन जाएंगे तो इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ को हमेशा ख़तरा ही रहेगा, और ख़तरा रहा, आज भी है। और इन्हीं के हाथ इस्लाम तबाह ही हुआ है। यजीद जैसे हुक्मरान खलीफा ही बन के बैठे, अमीरुल मोमिनीन भी वो ही कहलाया था और कोई दूसरा नहीं कहलाया था उस ज़माने में। उसके खिलाफ दरबार में 70 से ज़्यादा जो सहाबी मौजूद थे। अब यहाँ पर यही बात हो कि इल्म बढ़ जाए मगर ईमान कम हो जाए तो मौजूद ऐसे होते हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि तौफीक दे आम मुसलमानों को समझें, और ऐसे जो फिक्र जिनकी इल्म होने के बावजूद फिक्र इनकी जो है कमज़ोर है, फिर फिक्र इनकी मसलक के दायरे में डूबती रहती है, वो लोग उसकी पैरवी के बजाय अपनी ज़ाती दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। हकीकी वली कौन हो सकता है? उन्हें आवाम के ज़रिए कभी भी वली नहीं हो सकता। जितनी विलायतें अल्लाह ने तकसीम किया वो खुद अल्लाह ने किया। लोगों ने कहा कि तुम आदम को खलीफा बना लो, तुम नूह को नबी बना लो, तुम हज़रत इब्राहिम को इमाम बना लो, सब अल्लाह ने बनाया, सरपरस्त अल्लाह ने बनाया, विलायत अल्लाह ने तकसीम की। इंसान किसी को वली और सरपरस्त बना नहीं सकता। अब ये है कि आप बना लें तो आप बना लें, और उसके पास वो अल्लाह की शरीयत महफूज मिल नहीं पाएगी, और सब जो है तो आपके इस्लाम में खामियां पैदा होने के हज़ारों इम्कानात हैं। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।